So, common errors in preposition sentences. Please write your name with ink. So, यहाँ पे with ink नहीं होता, in ink. Please write your name in ink. हम in ink बोलते हैं. I shall go to home tomorrow. तो go to home नहीं होगा, go home. I shall go home tomorrow. इसी तरह से he caught me from the hand. तो आएगा he caught me by hand, by the hand. तो from नहीं आएगा, by आएगा. He caught me by the hand. He is sitting on his table. तो he is sitting at his table. On नहीं होगा, at होगा. He is sitting at his table. She hopes to pass in the examination. तो ये होगा she hopes to pass the examination. She hopes to pass the examination. You should repent from your misdeeds. तो होगा you should repent of your misdeeds. From नहीं होगा, of होगा. You should repent of your misdeeds. The principal disposed the application in no time. तो ये होगा the principal disposed of the application in no time. तो disposed of the application, यहाँ पे हम preposition of का यूज करेंगे. The principal disposed of the application in no time. He prevented me to leave. तो ये इनकरेक्ट होगा. करेक्ट होगा he prevented me from leaving the room. He prevented me from leaving the room. तो from का यूज होगा यहाँ पे प्रीपोजिशन का. इसी तरह से I live at कलकत्ता. तो at नहीं आएगा, in आएगा. I live in कलकत्ता. इसी तरह से I went to Delhi for attending a meeting. तो ये होगा I went to Delhi to attend a meeting. For attending नहीं होगा, to attend a meeting. I went to Delhi to attend a meeting. He was debarred to sit for the examination. तो ये भी incorrect sentence है. Correct होगा he was debarred from sitting for the examination. He was debarred from sitting for the examination. नेक्स्ट है he went in the bus. तो in the bus नहीं होता, by bus होता है. He went by bus. He went by bus. This book comprises of 3 units. तो यहाँ पे हम ऑफ का यूज नहीं करेंगे. हम बोलेंगे this book comprises 3 units. This book comprises 3 units. इसी तरह से I congratulate you for your success. तो ये भी इनकरेक्ट सेंटेंस है. करेक्ट होगा I congratulate you on your success. For नहीं, on. I congratulate you on your success. इसी तरह से he died from cholera. तो जो भी डिजीज़ है उसके लिए हम फ्रॉम नहीं यूज़ करेंगे, ऑफ यूज़ करेंगे. तो ये इनकरेक्ट सेंटेंस हो गया. करेक्ट होगा ही डाइड ऑफ कॉलरा. इसी तरह से ही इज़ गुड इन इंग्लिश. तो इन इंग्लिश नहीं होगा, एट इंग्लिश होगा. ही इज़ गुड एट इंग्लिश. इसी तरह your pen is different than your brother's. तो then नहीं होगा, यहाँ पे from का यूज होगा. Your pen is different from your brother's.
इसी तरह शी इज मैरिड विद अ रिच मैन, तो विद नहीं होगा, टू होगा, शी इज मैरिड टू अ रिच मैन। नेक्स्ट है शी मैरिड विद माई ब्रदर, तो विद नहीं होगा, शी मैरिड माई ब्रदर, शी मैरिड माई ब्रदर। He has lost the match from his rival, तो होगा he has lost the match to his rival, from का नहीं आएगा, यहाँ पे to का यूज होगा, he has lost the match to his rival। इसी तरह से नेक्स्ट है I have been searching my pen since morning, without the preposition for, search means to look into or to examine। For example, the customs officer searched his bag, the police searched his house। तो अगर हम फॉर का यूज़ नहीं करेंगे, फॉर प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं करेंगे, तो सर्च का मीनिंग हो जाएगा टू लुक इनटू और टू एग्जामिन। तो अगर यहाँ पे है आई हैव बीन सर्चिंग माई पेन सिंस मॉर्निंग, तो इसका मीनिंग चेंज हो जाता है, टू लुक इनटू और टू एग्जामिन हो जाएगा इसका मीनिंग। तो ढूंढने के लिए हम यहाँ पे प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे, सर्चिंग से के बाद हम क्या लगाएंगे, फॉर का यूज़ करेंगे। आई हैव बीन सर्चिंग फॉर माई पेन सिंस मॉर्निंग। अब देखते हैं कुछ कंजंक्शंस के एरर्स। कंजंक्शंस हो गए एंड, बट, बोथ, आर, आइदर, आर, नाइदर, नॉर, नॉट ओनली, बट आल्सो, बिसाइड्स, हाउएवर, अदरवाइज, देयरफॉर, सो, स्टिल, येट, दो, ऑल्दो, इफ, दैट, अनलेस, व्हेन, बिफोर, एटसेट्रा। तो ये सभी हैं कंजंक्शंस। कोरिलेटिव कंजंक्शंस लाइक बोथ एंड, ये हो गए कोरिलेटिव कंजंक्शंस। कौन कौन से, जैसे बोथ एंड, आइदर आर, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, गो इन पेयर्स, ये हमेशा पेयर्स में ही यूज होते हैं, इनको बोलते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शंस। केयर शुड बी टेकन ऑफ देयर करेक्ट पोजिशनिंग, दे शुड बी फॉलोड बाय द सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच आर फ्रेजेस ऑफ द सेम टाइप। तो जब हम इनको यूज़ करेंगे तो हमने ये केयर करनी है कि सेम पार्ट ऑफ स्पीच हम यूज़ करें या फ्रेजेस सेम टाइप के। जैसे फॉर एग्जांपल, ही गेव द बेगर नॉट ओनली मनी बट आल्सो क्लॉथ्स, तो हमने यहाँ पे बट आल्सो का यूज़ किया, नॉट ओनली और बट आल्सो। तो ये हमेशा पेयर में यूज़ होते हैं, जब नॉट ओनली होगा तब बट आल्सो का यूज़ होगा। इसी तरह से नेक्स्ट देखते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शन। स्टूडेंट्स मस्ट वियर आइदर हैट्स आर कैप्स, तो हमने यहाँ पे आइदर आर का यूज़ किया, तो यहाँ पे ये पेयर में हम कंजंक्शन को यूज़ करेंगे, इसे बोलते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शंस। इसी तरह से ड्रिंकिंग इज़ बैड बोथ फॉर द माइंड एंड फॉर द बॉडी, तो यहाँ पे भी हमने कोरिलेटिव कंजंक्शन बोथ एंड का यूज़ किया। तो हमने बस ये केयर करनी है कि ये इनकी करेक्ट पोजीशनिंग हो और ये फॉलो करे सेम पार्ट ऑफ स्पीच या फिर फ्रेजेस सेम टाइप के। इसी तरह से नेक्स्ट पार्ट है इसका, दो एंड ऑल्दो आर फॉलोड बाय येट बट नेवर बाय बट, येट में बी ओमिटेड आफ्टर देम। दो और ऑल्दो के बाद येट का यूज़ होता है, लेकिन कभी कभी हम येट को ओमिट भी कर सकते हैं, मीन्स हटा भी सकते हैं, लेकिन बट का यूज़ नहीं होगा। दो और ऑल्दो के बाद हमेशा येट का ही यूज़ होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, ऑल्दो ही वर्कड हार्ड येट ही फेल्ड, तो ऑल्दो के बाद क्या यूज़ हुआ, येट का यूज़ हुआ। इसी तरह से ऑल्दो ही वर्कड हार्ड ही फेल्ड, तो यहाँ पे हमने येट का यूज़ नहीं किया,
तो भी ये सेंटेंस करेक्ट है। तो हम although या दो के बाद yet का यूज़ करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन बट का यूज़ नहीं होता। इसी तरह से नेक्स्ट है स्कार्सली एंड हार्डली आर फॉलोड बाय व्हेन आर बिफोर। तो स्कार्सली और हार्डली जो है ये फॉलो होगा, इसके बाद हम क्या यूज़ करेंगे, व्हेन या फिर बिफोर। जैसे फॉर एग्जांपल द ट्रेन हैड स्कार्सली स्टार्टेड व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन। तो यहाँ पे स्कार्सली यूज़ हुआ था, तो इसके बाद हमने व्हेन का यूज़ किया। तो व्हेन या बिफोर दोनों में से हम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं स्कार्सली और हार्डली के बाद। जैसे एक और एग्जांपल है स्कार्सली हैड आई स्टेप्ड आउट व्हेन इट बिगन टू रेन। तो स्कार्सली के बाद यूज़ हुआ व्हेन। इसी तरह से नो सूनर इज फॉलोड बाय देन। नो सूनर के बाद देन का यूज होगा। जैसे नो सूनर डू आई सी हिम देन आई बिगन टू लाफ। तो नो सूनर के बाद देन का यूज होगा। इसी तरह से लेस्ट इज फॉलोड बाय शुड। इट शुड नॉट बी फॉलोड बाय ए नेगेटिव वर्ब। लेस्ट के बाद शुड का यूज होगा और कोई नेगेटिव वर्ब यूज नहीं होती। जैसे फॉर एग्जांपल वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। तो लेस्ट के बाद शुड का यूज होता है। अनलेस एंड अनटिल आर नॉट फॉलोड बाय नॉट। और अनलेस और अनटिल के बाद कभी भी नॉट नहीं लगता। इफ एंड वेदर आर नॉट ऑलवेज इंटरचेंजेबल। इफ और वेदर कभी इंटरचेंजेबल नहीं होते। वेदर कैन नॉट बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ if to express a condition or the idea of whenever। तो weather जो है वो कभी भी if की जगह यूज़ नहीं होगा उस कंडीशन को एक्सप्रेस करने के लिए जो ये आइडिया देती है whenever का। जैसे I shall not come if it rains। तो यहाँ पे हम if यूज़ करेंगे, यहाँ पे हम if की जगह weather यूज़ नहीं कर सकते। Then takes the same case after it as before it। तो then जो है वो उसका यूज़ कैसे करेंगे, ये जैसे आफ्टर इट के बाद यूज़ होता है उसी तरह से इट से पहले भी। जैसे फॉर एग्जांपल यू आर ओल्डर देन आई। तो ये यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया, देन का यूज़ किया। तो जैसे इट में यूज़ होता है उसी तरह से ये यहाँ पे भी इसका सेम यूज़ है। इन मॉडर्न इंग्लिश देन इज़ ट्रीटेड एज ए प्रीपोजिशन विद द ऑब्जेक्टिव केस। तो मॉडर्न इंग्लिश में जो देन है इसको ट्रीट किया जाता है एज ए प्रीपोजिशन ऑब्जेक्टिव केस के साथ में। फॉलोइंग इट व्हेन द वर्ब इज इंट्रांसिटिव। जब वर्ब इंट्रांसिटिव होगी। और व्हेन द प्रोनाउन इज क्वालिफाइड बाय ऑल और बोथ। या फिर जब प्रोनाउन जो है वो क्वालिफाई हो रहा होगा ऑल से या बोथ से। जैसे फॉर एग्जांपल माय कज़न इज टॉलर देन मी। तो यहाँ पे जो है देन का यूज़ हुआ, देन का यूज़ हो रहा है ऑब्जेक्टिव केस के साथ। और ऑब्जेक्टिव केस क्या है, मी। तो इसी तरह से शी इज़ क्लेवर देन अस ऑल। तो यहाँ पे भी ऑब्जेक्टिव केस जो है अस और उसके साथ ऑल का यूज़ हो रहा है, उसे क्वालिफाई कर रहा है ऑल। तो हमने इसीलिए यूज़ किया देन, THAN देन। इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस है। अब हम देखते हैं इनकरेक्ट और करेक्ट सेंटेंसेस। फर्स्ट है अनलेस यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल नॉट सक्सीड। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये अनलेस यूज़ हुआ है पहले, तो इसके बाद नेगेटिव जो है नॉट, डू नॉट यूज़ नहीं होगा।
तो ये इसका करेक्ट होगा, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट सक्सीड। इसी तरह से नेक्स्ट है, अनटिल यू रिमेन रेस्टलेस यू कैनॉट कंसंट्रेट। तो अनटिल नहीं यूज होगा यहाँ पे यूज होगा, सो लॉन्ग एज यू रिमेन रेस्टलेस यू कैनॉट कंसंट्रेट। इसी तरह से, आई डाउट दैट यू विल सक्सीड। तो यहाँ पे दैट का यूज़ नहीं करेंगे हम, यहाँ पे यूज़ करेंगे आई डाउट वेदर यू विल सक्सीड या फिर इफ़ यू विल सक्सीड। इसी तरह से, एज आई एम इल सो आई कैन नॉट अटेंड कॉलेज। तो यहाँ पे क्या यूज़ होगा, सो का यूज़ नहीं करेंगे हम, यहाँ पे हम लिखेंगे एज आई एम इल आई कैन नॉट अटेंड कॉलेज। इसी तरह से, नाउ यू अपोलोजाइज आई विल फॉरगिव यू। तो यहाँ पे हम नाउ के बाद दैट का यूज़ करेंगे, नाउ दैट यू अपोलोजाइज आई विल फॉरगिव यू। इसी तरह से, लिटरेचर हैज़ नो अदर एम बट एंटरटेनमेंट। तो यहाँ पे बट का यूज़ नहीं होगा, यहाँ पे देन हम यूज़ करेंगे। हम यहाँ पे बोलेंगे लिटरेचर हैज़ नो अदर एम देन एंटरटेनमेंट। इसी तरह से, दिस बुक कंटेन्स 350 पेजेस। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, दिस बुक कंटेन्स 350 पेजेस। तो 350 पेजेस नहीं होता, 350 पेजेस। तो हम यहाँ पे ऐसे यूज़ करते हैं। इसी तरह से अगर डेट ऑफ बर्थ भी होती है तो अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ होगी 2001 तो हम लिखेंगे 2001। तो इस तरह से। इसी तरह से नेक्स्ट है, एन ओल्ड टीचर इज एज इफ द फादर ऑफ हिज प्यूपिल्स। तो ये होगा, एन ओल्ड टीचर इज एज इट वर द फादर ऑफ हिज प्यूपिल्स। तो ओल्ड टीचर इज एज इट वर, एज इफ नहीं होगा, एज इट वर। एन ओल्ड टीचर इज एज इट वर द फादर ऑफ हिज प्यूपिल्स। इसी तरह से, ही इज डल एंड हिज ब्रदर इज इंटेलिजेंट। तो ये सेंटेंस होगा, ही इज डल वाइल हिज ब्रदर इज इंटेलिजेंट। तो एंड नहीं होगा, वाइल हिज ब्रदर इज इंटेलिजेंट। इसी तरह से नेक्स्ट है, शी पास्ड एंड हर सिस्टर फेल्ड। तो एंड नहीं होगा, एंड यूज नहीं होगा, बट का यूज करेंगे हम, शी पास्ड बट हर सिस्टर फेल्ड। तो दोनों अपोजिट हैं, तो इसलिए हम बट का यूज करेंगे। इसी तरह से, आई एम गोइंग टू डेली बिकॉज आई मे सी माई आंट। बिकॉज इम्प्लाइज सम रीज़न और काज एंड नॉट पर्पज। तो बिकॉज का मीनिंग हो गया कि वो इम्प्लाई करता है सम रीज़न और काज। तो इसीलिए आई एम गोइंग टू दिल्ली दैट आई मे सी माई आंट, या फिर आई एम गोइंग टू दिल्ली टू सी माई आंट। तो बिकॉज का यूज़ यहाँ पे नहीं होगा। इसी तरह से, ही आस्क्ड दैट वेयर आई लिव्ड। तो ये होगा, ही आस्क्ड वेयर आई लिव्ड। तो यहाँ पे दैट का यूज़ हम नहीं करेंगे, ही आस्क्ड वेयर आई लिव्ड। इसी तरह से, ही टुक अनदर पाथ फ्रॉम द वन आई शोड हिम। तो ये होगा, ही टुक अनदर पाथ देन द वन आई शोड हिम। तो फ्रॉम नहीं होगा, देन होगा, ही took another path than the one I showed him. इसी तरह से, walk carefully lest you may not fall। तो
यहाँ पे लेस्ट का यूज़ हुआ है तो आगे नेगेटिव यूज़ नहीं होगा, नॉट यूज़ नहीं होगा। तो हम लिखेंगे वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल। यहाँ पे लेस्ट के बाद शुड का यूज़ होता है, तो लेस्ट यू शुड फॉल। इसी तरह से ही इज़ नाइदर ब्रिलियंट एट लैंग्वेजेस नॉर साइंस। तो यहाँ पे होगा ही इज़ नाइदर ब्रिलियंट एट लैंग्वेजेस नॉर एट साइंस। यहाँ पे हम एट का यूज़ करेंगे, इसका एट का यूज़ करेंगे यहाँ पे। इसी तरह से द टीचर रीड द क्वेश्चंस वाइल द स्टूडेंट्स रीड द आंसर्स। तो ये होगा वाइल नहीं, यहाँ पे यूज़ होगा एंड यूज़ होगा। द टीचर रीड द क्वेश्चंस एंड द स्टूडेंट्स रीड द आंसर्स। या फिर अच्छा नेक्स्ट देखते हैं। शी कम्स टू सी यू फार मोर ऑफन देन मी। शी कम्स टू सी मी। तो ये ऐसे होगा शी कम्स टू सी यू फार मोर ऑफन देन आई डू। देन मी नहीं, देन आई डू। इसी तरह से या फिर शी कम्स टू सी यू फार मोर ऑफन देन, बस यहाँ तक। इसी तरह से यू मस्ट आइदर ब्रिंग अ लेटर फ्रॉम योर पेरेंट और ए डॉक्टर्स सर्टिफिकेट। तो ये कैसे होगा, यू मस्ट ब्रिंग आइदर ए लेटर फ्रॉम योर पेरेंट्स और ए डॉक्टर्स सर्टिफिकेट। तो यहाँ पे ना फ्रॉम का यूज़ होगा ब्रिंग के बाद। यू मस्ट आइदर ब्रिंग फ्रॉम यू मस्ट आइदर ब्रिंग ए लेटर फ्रॉम योर पेरेंट्स। यू मस्ट आइदर का यूज़ ब्रिंग के बाद होगा, पहले होगा यू मस्ट ब्रिंग आइदर ए लेटर। यू मस्ट आइदर ब्रिंग नहीं होगा, यू मस्ट ब्रिंग आइदर ए लेटर फ्रॉम योर पेरेंट्स और ए डॉक्टर सर्टिफिकेट। तो इस तरह से आइदर के बाद हम आर का यूज़ करेंगे। आइदर आर वो ठीक है, बट आइदर जो है हम यूज़ करेंगे ब्रिंग के बाद। यू मस्ट ब्रिंग आइदर ए लेटर। इसी तरह से ही नॉट ओनली स्पीक्स इंग्लिश बट आल्सो जर्मन एंड फ्रेंच। तो यहाँ पे भी जो है वो गलत हुआ है कि मीन्स वर्ब को हमने पहले यूज़ करना है। तो हम ऐसे लिखेंगे ही स्पीक्स नॉट ओनली इंग्लिश बट आल्सो जर्मन एंड फ्रेंच। In the same way, he is such a man that no one likes. तो ये होगा he is such a man as no one likes. That नहीं होगा, as. He is such a man as no one likes.